بلسان عربي مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو عربی لغت سیکھو. آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر. الحمدللہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس کا نام ہے عربی کا معلم، جس کے 9 لیکچرز ہم نے ریکارڈ کر دیے ہیں. اگر کسی نے نہیں دیکھا تو یہاں پر آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں. گزشتہ لیکچر نمبر 9 میں ہم نے الدرس الثالث کو شروع کیا تھا، یعنی مرکبات کو ہم نے پڑھا تھا. آج عربی کا معلم سیریز میں لیکچر نمبر 10 یعنی لیکچر نمبر 10 آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. ہم نے گزشتہ جو لیکچر نمبر 9 میں مرکبات کی اقسام کو پڑھا تھا، مرکب تام اور مرکب ناقص، اسی طریقے سے مرکب توصیفی وغیرہ کو ہم نے سمجھا تھا. آج یہاں سے ہم پڑھیں گے، آج کے اس لیکچر نمبر 10 میں الدرس الثالث یعنی تھرڈ لیسن ہی کو ہم انشاءاللہ جہاں تک ہم نے روکا تھا اس کے آگے سے ہم پڑھیں گے. تو عربی ووکیبلری یہاں پر الدرس الثالث میں لکھی ہوئی ہے، عربی الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں لیکچر نمبر 3 میں. تو ابھی ہم اس کو لیکچر نمبر 3 کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو سب سے پہلا لفظ دیکھیے، بستانن. یہ ووکیبلری ہے، اس کو اچھے سے یاد کریے. اگر آپ عربی بولنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے گرامر ہو چاہے اسپوکن ہو، آپ کو ووکیبلری آنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا لفظ ہے بستانن. بستانن کا مطلب ہے باغ، گارڈن. اس کے بعد دیکھیے کبیرن. کبیرن کا مطلب ہے بڑا، بگ. اس کے بعد ہے بحرن. بحرن کہتے ہیں سمندر، دریا، یعنی اوشن بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر سی بھی کہہ سکتے ہیں. عمیقن گہرا، ڈیپ. بطیقن تربوز، خربوز یعنی میلن. ردیئن. ردیئن کا مطلب ہے نکما. انفیریئر کہہ سکتے ہیں. تفاحن سیب، ایپل. جیدن عمدہ. آگے دیکھیے، رمانن انار. حلون میٹھا. شارعن بڑا راستہ. عریضن چوڑا یعنی وائڈ، براڈ، اس کو عریض کہتے ہیں. قصرن محل یعنی پیلس کو آپ قصر کہہ سکتے ہیں. مشیدن مضبوط. محلن. محلن جگہ کو کہتے ہیں یعنی پلیس، لوکیشن. نظیفن کلین، صاف ستھرا. مسجدن مسجد. وسیعن کشادہ. ملکن بادشاہ. عظیمن بزرگی والا، بڑا، شاندار. جبنن. جبنن کہتے ہیں پنیر کو، یعنی انگلش میں چیز. مالحن یا ملحن کھارا، نمکین. اصل میں ملح نمک کو کہتے ہیں، سالٹ کو. تو مالح جب استعمال کریں گے تو اس کا مطلب سالٹی استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس کو کسی کے ساتھ ملا سکتے ہیں آپ. قلمن قلم، پین. صغیرن چھوٹا. وردن گلاب کا پھول. احمرو سرخ یعنی ریڈ. اب یہاں پر آپ کو نیچے لکھا گیا ہے تنبیہ کے اندر، اوپر کے سلسلے میں ایک طرف اس میں ذات اور دوسری طرف اس میں صفت ہے. دونوں کو جوڑ کر بہت سے مرکب توصیفی تیار کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے گزشتہ لیکچر نمبر 9 کے اندر اس میں ہم نے مرکب توصیفی کو سمجھا تھا. مرکب توصیفی کو اگر آپ مکمل سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک مرکب توصیفی کی کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے، یہاں آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے، یہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لیکچر نمبر 9 کو بھی دیکھ سکتے ہیں. مرکب توصیفی میں اس میں ذات ہوتا ہے اور ایک اس میں صفت ہوتی ہے. اس میں ذات ہوتا ہے جسے ہم موصوف کہتے ہیں، اور جو دوسرا جز آتا ہے جو صفت آتی ہے، یعنی اس میں ذات کی جو کوالٹی بیان کی جاتی ہے اس کو ہم صفت کہتے ہیں. تو موصوف اور صفت مل کر اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں. تو اب ان دونوں کو یہاں پر دیکھیں، ایک طرف جو بیان کیا گیا ہے یہ سارے اس میں ذات ہے. ان الفاظ کو اگر ہم یہ الفاظ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، کیونکہ یہاں پر رائٹ رو کے اندر سارے اس میں ذات لکھے گئے ہیں اور لیفٹ رو کے اندر صفت لکھی گئی ہے، یعنی تمام کے تمام صفات لکھے گئے ہیں. اب ہم مرکب توصیفی بنائیں گے. بستانن کبیرن، ان دونوں کو ملا دیجئے، مرکب توصیفی بن گیا. بستانن کبیرن کا مطلب ہے بڑا باغ، اے بگ گارڈن، اس طریقے سے. تو بستانن موصوف ہے اور کبیرن صفت ہے. صفت یعنی بستانن کی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے. تو بحرن سمندر. عمیقن گہرا، تو اب ہم اس کو ملا دیں گے، بحرن عمیقن گہرا سمندر. بطیقن ردیئن، اس کا مطلب ہے ویسٹ تربوز یعنی خراب تربوز، اس طریقے سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. تفاحن جیدن عمدہ سیب یعنی بہترین سیب، اس طریقے سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ابھی ساروں کو آپ اس طریقے سے جڑا لیجئے. رمان حلون میٹھا انار. تو مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم صفت کا ترجمہ کرتے ہیں اردو کے اندر اور پھر بعد میں موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ عربی میں
पहले मौसूफ को लिखा जाता है और बाद में सिफत को लिखा जाता है। शारिउन अरीदुन, चौड़ा रास्ता। कसरुन मशीदुन, मजबूत महल। महल्लुन नज़ीफुन, साफ सुथरी जगह। मस्जिदुन वसीउन, कुशादा मस्जिद। मलिकुन अज़ीमुन, बड़ा बादशाह या अजीम बादशाह। उसके बाद आप देखिए जुबनुन मालिहुन, नमकीन पनीर यानी असाल्टी चीज। कलमुन सगीरुन, छोटा कलम। वरदुन अहमरु, सुर्ख गुलाब का फूल यानी एरेड रोज। आगे आप देखिए मश्क नंबर 2 है। यहाँ पर सारे मुरक्कब तौसीफी, चूंकि लेक्चर नंबर 9 में हमने मुरक्कब तौसीफी को समझा था, अब आपको मुरक्कब तौसीफी की मुकम्मल मश्क कराई जा रही है, तो ताकि आपकी अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। मश्क नंबर 2 में सबसे पहला जुमला है अल्लाहुल अज़ीमु। ये सारे मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है, मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफत को भी मारिफा रखना होता है। मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होती है। मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत को भी हमें मुज़क्कर लाना होगा, और मौसूफ हालत रफ़ा में है तो सिफत भी हालत रफ़ा में होगी। मौसूफ अगर हालत नसब में है तो सिफत भी हालत नसब में रहेगी। तो इस तरीके से मौसूफ और सिफत दोनों में मुताबिकत होना बहुत ज़रूरी है चारों एतबार से। तो अल्लाहुल अज़ीम इसका तर्जुमा हो जाएगा अज़ीम अल्लाह या बुजुर्गी वाला अल्लाह। उसके बाद दूसरा जुमला देखें, अर रसूलुल करीमु, करीम रसूल या मुअज़्ज़ज़ रसूल या सखी रसूल, इस तरीके से आप करीम का तर्जुमा कर सकते हैं। क़स्रुन अज़ीमुन, बड़ा महल, ए ग्रैंड पैलेस। अलबैतुस सगीरु, छोटा घर। बुस्तानुन नज़ीफुन, साफ सुथरा बाग, ए क्लीन गार्डन या फिर ए नीट गार्डन, इस तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं। तमरुन हुल्वुन, तमरुन कहते हैं खजूर, मीठा खजूर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ को याद रख लीजिए, यहाँ तमरुन नकीरा है, कॉमन नाउन है, तो हुल्वुन सिफत को भी हमने कॉमन नाउन ही लाया है। और अर रसूल यहाँ पर मारिफा है तो अल करीम सिफत को भी हमने मारिफा लाया है। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। और तर्जुमे में क्या असर होगा, यहाँ पर खास रसूल के बारे में बताया जा रहा है, और जब मैं नकीरा इस्तेमाल करूंगा तमरुन हुल्वुन, तो कोई एक मीठा खजूर के बारे में बात चल रही है, यानी कॉमन नाउन के बारे में बात चल रही है। 7वां जुमला है अत्तमरुल हुल्वु। देखिए जहां यहाँ पर तमरुन हुल्वुन है, यहाँ पर अत्तमरुल हुल्वु है, दोनों का तर्जुमा एक है, मीठा खजूर, ये भी मीठा खजूर, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। यहाँ किसी खास मीठे खजूर के बारे में बताया जा रहा है, ये किसी आम मीठे खजूर के बारे में बताया जा रहा है। 8वां जुमला है मलिकुन सालिहुन, नेक बादशाह। अल बहरुल मालिहु, खारा समंदर। शैउन तय्यिबुन, अच्छी चीज। अर रजुलुत तय्यिबु, अच्छा आदमी। मुहम्मदुनिर रसूलु, पैगंबर मोहम्मद। रब्बुन गफूरुन, बख्शने वाला रब। ज़म्बुन अज़ीमुन, बड़ा गुनाह। ज़म्बुन कहते हैं गुनाह, अज़ीम कहते हैं बड़ा। रजुलुन क़बीहुन, बुरा आदमी। अल जुबनुर रदीउ, अल जुबनु कहते हैं खास पनीर के बारे में बताया जा रहा है, तो अल जुबनुर रदीउ, रदीउ का माना हमने ऊपर देखा था वोकैबुलरीज के अंदर कि खराब या इन्फीरियर, तो खराब पनीर। खुब्जुन जय्यिदुन, अच्छी रोटी। व तमरुन हुल्वुन, और मीठा खजूर। वह कहते हैं और, यानी इंग्लिश में एंड इस्तेमाल करते हैं हम। तुफ़ाहुन अहमरु, लाल सेब। अहमर कहते हैं लाल यानी रेड, और तुफ़ाह कहते हैं सेब। और रजुलुस सालिहु वल मलिकुल करीमु, नेक आदमी और सखी बादशाह। अल बित्तीकुल हुल्वु, मीठा तरबूज। अल वर्दुल अहमरु, लाल गुलाब, द रेड रोज। अब आगे देखिए अरबी में तर्जुमा करें। ऊपर जो जुमले लिखे हुए थे मुरक्कब तौसीफी को हमने उर्दू में तर्जुमा किया है, मुरक्कब तौसीफी के जुमले लिखे हुए थे। अब यहाँ पर मुरक्कब तौसीफी उर्दू में लिखा हुआ है, यानी मौसूफ सिफत अब हमें अरबी में बनाना है। तो यहाँ पर देखें उर्दू में क्या होता है, सिफत पहले आती है। मजबूत ये सिफत है, मकान ये इसमें ज़ात है, तो दोनों भी इसम है, लेकिन एक इसमें सिफत है और एक इसमें ज़ात है। तो उर्दू में सिफत पहले आती है और इसमें ज़ात बाद में आता है। तो अब हम अरबी में पहले मजबूत का तर्जुमा नहीं करेंगे बल्कि मकान का तर्जुमा करेंगे। तो अब अरबी में किस तरीके से बनाएंगे, मकान को कहेंगे बैत, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैतुन। ये आपको मैं पहले जुमले को अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, बाद में जल्दी जल्दी अरबी जुमले बना दूंगा। तो पहले आप देखें मकानुन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है बैतुन। मजबूत को हमने पढ़ा था ऊपर मशीदुन, मशीदुन। तो बैतुन मशीदुन का मतलब हो जाएगा मजबूत मकान।
اور ایک यहाँ पर इन मौसूफ सिफत जो नकीरा है उसको यहाँ पर इन्होंने कोई एक नेक मर्द या एक खूबसूरत घोड़ा इस तरीके से उन्होंने कॉमन नाउन का इशारा दिया है उर्दू में तर्जुमा करके। और जो प्रॉपर नाउन है यानी मारिफा है उसको उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है मजबूत मकान। तो एक मजबूत मकान अगर वो लिखते यहाँ पर तो हम इसको बैतुन मशीदुन बनाते थे। चूंकि यहाँ पर उन्होंने एक मजबूत मकान नहीं लिखा है तो ये नकीरा नहीं है बल्कि मारिफा है, तो अब हमें इसे अलिफ लाम लगाना होगा। तो अल बैतु और अलिफ लाम लगने से तनवीन चली जाएगी, तो हम इसे अल बैतु लिखेंगे यहाँ पर दोनों ही जगह पर, अल बैतु अल मशीदु। तो अब इसको मिला देंगे अल बैतुल मशीदु। तो आप समझ गए होंगे जो सारे जुमले हैं मौलवी अब्दुल सत्तार खान रहीमहुल्लाह का तरीक़ाकार यही है, इन्होंने इस किताब में भी लिखा है कि जहां जहां वो कोई एक या एक खूबसूरत इस तरीके से लिखते हैं तो इस जुमले का मतलब है कि ये नकीरा है। तो छोटा घर अल बैतुस सगीरु, बदसूरत मर्द, मर्द पहले हम लिखेंगे इसमें ज़ात, अर रजुलु अल कबीहु, मिला देंगे अर रजुलुल कबीहु, चौड़ा रास्ता, अशारिउल अरीदु। उसके बाद पांचवा जुमला देखिए, मीठा दूध, अल लबनु अल हुल्वु, इसको मिला देंगे अल लबनुल हुल्वु। शानदार महल, महल को कहते हैं कसरुन और चूंकि मारिफा है तो अल कसरु, शानदार को कहेंगे अल अज़ीमु, तो अल कसरुल अज़ीमु। सातवां जुमला देखिए, आसान सबक, सबक को कहते हैं दर्स, अद-दर्सु सहलु, एक मीठा फल। चूंकि यहाँ पर एक लिखा है तो अब हमें नकीरा बनाना है, इसमें ज़ात को पहले लिखेंगे, फल को लिखेंगे पहले, तो फल को कहते हैं समर, तो समरुन हुल्वुन। नाइन्थ वाला जुमला देखिए, छोटी जगह, जगह को कहते हैं महल्लुन, तो यहाँ पर मारिफा है तो अल महल्लुस सगीरु। उम्दा घोड़ा, उम्दा को हम यहाँ पर जय्यद कह सकते हैं, तो घोड़े को कहेंगे अल फरसुल जय्यदु। 11वां जुमला देखिए, कुशादा घर, तो ये भी मारिफा है, अल बैतुल वसीउ, कुशादा को कहते हैं वसीउ। कोई एक नेक मर्द, तो यहाँ पर हमें कॉमन नाउन बनाना है, तो पहले मर्द को हम यहाँ पर लिखेंगे रजुलुन और उसकी सिफत को हम लाएंगे सालिहुन, तो रजुलुन सालिहुन से इसका तर्जुमा हो जाएगा कोई एक नेक मर्द। एक खूबसूरत फूल, फूल को कहते हैं ज़हरुन और खूबसूरत को कहते हैं जमीलुन, तो बना देंगे ज़हरुन जमीलुन। 14वां जुमला है, एक खूबसूरत घोड़ा, फरसुन जमीलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, तो बादशाह को पहले लिखेंगे अल मलिकु और इंसाफ करने वाला अल आदिलु, तो अब हम मिलाकर बना देंगे अल मलिकुल आदिलु। उम्दा रोटी या अच्छा दूध, तो अल खुब्जु अल जय्यदु, मिला देंगे अल खुब्जुल जय्यदु, या के लिए औ लगाएंगे, अल खुब्जुल जय्यदु औ, दूध अल लबनु, और अच्छा के लिए हम जय्यद भी बोल सकते हैं, तय्यब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको बना देंगे पूरे जुमले को, अल खुब्जुल जय्यदु अविल लबनु तय्यबु। 17 जुमला देखिए, एक नेक लड़का और एक बदकार लड़का, तो नेक लड़का का तर्जुमा करेंगे वलदुन सालिहुन, और एक बदकार लड़का व वलदुन फासिकुन। हमारा आखिरी जुमला है, बड़ी मस्जिद और एक छोटा बाग, तो बड़ी मस्जिद अल मस्जिदुल कबीरु और एक छोटा बाग, इसको हम कॉमन नाउन बनाएंगे व बुस्तानुन सगीरुन। इस तरीके से हमने तमाम जुमले अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए हैं। इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 11 में हम अद-दर्सुर राबिअ पढ़ेंगे, यानी 4th लेसन पढ़ेंगे। जब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।